Hello everyone, welcome to Dr. MDS Academy. Today in this lecture we are going to see flat belt drives. So various type of belts we are having, available in the market and used in the various industries. Flat belt, V belt, circular belt, different materials. What are the different materials? Rubber, cotton, leather, etc. we use. So different types of belt drives depending upon the applications. Okay, maybe the open belt drive, cross belt drive, quarter turn, 90 degree. Okay, one is this. This is one pulley. Okay, and another is this pulley. Okay, just 90 degree. Okay, this belt is wrapped over this to 90 degree. Okay, this is quarter turn belt. Then belt drive with Adler pulley. Okay, where is used when the the belts are loose. Okay, to adjust the to tighten the belt. Okay, we use this concept Adler pulley. We use. Okay, uh, then we find what is the ratio, velocity ratio. Okay, N2 upon N1 in terms of D or thickness. Okay, so number of questions being asked from this direct formula. Okay, so first of all you have to get aware of what is S1, what is D1, N1 and V. Okay, then only you can apply. Okay, S1 and S2 are the slip occurring on the driver and the driven pulley. Okay, what is grip of the belt, uneven extension, contraction of the belt when it passes from driver to when it passes. Okay, from tight side to slack side, tight side to slack side, causes a relative motion between the belt and the pulley. Okay, this is known as a grip depending upon Young's modulus of elasticity of the belt. Okay, then after we calculate the what is the length of open belt. Okay, complete length of open belt in terms this formula we obtain after derivation, and similarly length of cross belt you can get the expressions. Okay, this what is the ratio between the tension T1 and T2 in terms of coefficient of friction and theta, wrap angle, and P is the power, how much power gets transferred. This is T1 minus T2 means tension, Newton minus Newton into meter per second. So ultimately T is tension means in Newton. What is V? Velocity meter per second. So what is that? Newton meter is joule. Okay, per second. This is ultimately watt. So power we can calculate when you are knowing T1 and T2. Similarly, sin alpha for the belt and the cross belt drive. Okay, you can get, and then after centrifugal tension, what is that? TC is equal to mv square. Okay, so some if sigma is the stress. Okay, then how can you calculate the maximum tension? Okay, so this is given by these expressions. Okay, nothing, stress is equal to force upon area. Okay, force is nothing but tension, maximum tension upon area. Area is what? This area, cross section area, cut cross section area of the belt. Okay, B is this and T is thickness, this thickness, height. Okay, this is the nothing but rectangle, so B into T. Okay, V into T will give the stress value. Similarly, this is a little long chapter, okay, but very easy. Okay, so this is wire. Okay, wire we seen in the like this. Okay, so if 6 into 7 rope is given, what does it mean? 6 means number of strands or number of wires in each strands. Okay, 6 is what? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total number of strands are 6. And how what is 7? 7 is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, here in one strand how many wires, small wires are there? 7. Okay,
So this is number of strands and 7 is the number of wires in each strand, in one strand. Similarly in here 7 strands you will be getting. Similarly here 7 strands. Okay, how many strands are there? 1 strand, 2, 3, 4, 5, 6. Similarly here also. Okay, then after next chapter will be the friction. Okay, so in friction we find out the torque, okay, based on uniform pressure theory and uniform wear theory. If this is our flat period bearing, T torque is equal to 2 by 3 mu into W into R. Direct, I have written formula, but it has its own derivation. Okay, if you will see my conventional classes, you can get the full derivations here. Okay, so direct in my published book, I have written this direct expression I have used. Okay, for easy quick revision. Considering uniform wear, you will be getting 1 by 2 mu into W1 into R. Okay, this was the case for the what? Flat period bearing. Now next is the conical period bearing. If it has some angle, certain angle, say angle is 2 alpha, here 2 alpha, here 2 alpha. Okay, so in terms of this, you will be getting these two expressions for the uniform pressure theory, for the uniform wear theory. Okay, similarly, for the flat collar bearing, okay, we are having a two radius. One is internal radius, another is outer radius. This is our R1 outer radius, this is the R2. Okay, so this here in the circumference it will be having a friction lines. Okay, similarly we use in the clutches also. Okay, where the friction lines are there, you can see here at the bottom. See here, single disc plate clutch. Okay, for that we are having a friction line now here. So what is the radius? Outer radius is R1, inner radius is R2. Okay, for that if uniform pressure is used, we will be using direct this formula. If uniform wear we are using, okay, or in the question it is given uniform wear use, you will use this one. Okay, 1 by 2 mu into W R1 plus R2. Ultimately R1 plus R2 divided by 2 is what? Mean radius. Okay, mean radius. So where we use uniform pressure, where we use uniform wear. Okay, the question arises, जब हम लोग का कोई भी क्लच is very new. Okay, if clutch is very much new, then what happens? All sides are very much, okay, uniform, or there is no wear or no geometry inaccuracy is there. Okay, in that case, almost everywhere you will be getting the same pressure. Pressure is what? Force upon area. Okay, if clutch is very much new, then in that case load will always be acting constant. That's why the uniform pressure theory is used. Okay, now as it gets wear out over the time, एक दिन दो दिन चार दिन 10 दिन एप्लीकेशन होने के बाद क्लच क्या होता है, इससे चिपकेगा फिर बाहर आएगा, इससे चिपकेगा फिर बाहर आएगा. For rapidly using, okay, what will happen? Its surface will get worn out. Okay, so in that case what will happen? In that case what will happen? V is equal to omega into R. Okay, as it get worn out, as the radius is changes, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, as the radius is getting changed, then what will happen? Velocity is also getting changed. So in that case you will be using uniform wear. Okay, so this is the concept for that. So based on those flat belt, cross belt drive and these frictions, okay, we are going to solve some of the previous year
engineering service exam question and gate questions. Okay, let's start from this question number 1. क्या बोल रहा है, ये गेट का क्वेश्चन 2006 का है, 2 मार्क्स का. ए डिस्क क्लच है is required to transmit 5 kilowatt at 2000 rpm. So we have given power कितना दे रखा है, 5 kilowatt. So can I write like this, 5000 watt. Okay, so n is given 2000 rpm. Okay, the disc has a friction lining with a constant coefficient of friction equal to 0.25. Mu is given 0.25. कैसा है हम लोग का एक इस तरीके से क्लच है ना. जैसे मैं ये क्लच यहाँ दिखाया था, है ना, यहाँ पर क्लच है. ठीक है, ये फ्रिक्शन लाइनिंग है, एयर फ्रिक्शन लाइनिंग वी आर हैविंग. ओके, यहाँ से वो टच कर रहा है, ब्रेक का काम करेगा. तो यहाँ पर क्या है, म्यू इज गिवन, ये लाइन और ये लाइन के बीच का एक फ्रिक्शन होगा. ठीक है, ये फ्रिक्शन लाइन होगा. ठीक है, ये सेंटर लाइन है. द बोर रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन लाइनिंग इज 25 cm. This is our bore. Okay, how much given? Suppose this is our R2 and this is our what? R1. Okay, so R2 is given, bore radius is given 25 mm. Assume uniform contact pressure, means pressure is equal to constant. ठीक है, थ्योरी लगाना है of 1 मेगा पास्कल. ठीक है, यूनिफॉर्म प्रेशर. ठीक है, मतलब कि ये डिस्क काफी नया है कि नो वियर आउट, तो हर जगह लोड बराबर लगेगा. द वैल्यू ऑफ आउटसाइड रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन लाइनिंग इज R1 का वैल्यू इट इज आस्किंग व्हाट इज R1. So can I use direct expressions which I derived earlier? Which expression? Uniform pressure theory na. So this will be using. We will be using this one direct. Okay. So you have to remember that expression. Okay. So torque. What we know? 2 by 3 mu into W into what? R1 का क्यूब minus R2 का क्यूब अपॉन R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर. ओके, जस्ट फॉर इजी ऑफ रिमेम्बर. ओके, टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर. राइट साइड में देखो क्या है, म्यू का कोई यूनिट नहीं. ये क्या है, डब्ल्यू इज लोड, इसका यूनिट क्या है, न्यूटन. हमें और क्या डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो लेफ्ट साइड का बराबर डायमेंशन आएगा. सो आर का स्क्वायर और आर क्यूब का यूनिट क्या आएगा, मीटर. Okay, so by these expressions unit you can remember now. ये फॉर्मूला है मेरे पास. अब देखो टी टॉर्क कहाँ से आएगा, पावर दे रखा है क्या, पावर इज इक्वल टू टी इंटू ओमेगा बीनो. ओके, तो टी टॉर्क हमें आ जाएगा 2 पाई n/60. पावर हाउ मच गिवन, 5000. ठीक है, न्यूटन, ये क्या है, ये क्या है, पावर इज वाट. ओके ठीक है, इसको रहने दो वाट में. ठीक है, इज इक्वल टू टी इंटू 2 पाई n, 2 पाई इंटू n हाउ मच, 2000 अपॉन 60. so ultimately t we are getting, use calculator. these 3 से 3 जीरो उड़ा, 2 इंटू पाई इंटू 2 divided by 60. okay, into 5
तो टॉर्क वी आर गेटिंग 23.87। ये किस में यूनिट था? वाट में था, यानी स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, यूनिट क्या था? वाट का यूनिट क्या होता है? जूल पर सेकेंड। ठीक है, जूल का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर में आएगा ना, न्यूटन मीटर टॉर्क स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, नाउ दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, दिस इज आवर 2। अब क्या करें हम लोग? पुट 2 in 1। ओके, तो t इज इक्वल टू 23.87। अब मैं क्या करता हूँ, 10 to the power 3 कर देता हूँ। क्यों? न्यूटन mm में लाने के लिए। mm में कर दिया मीटर को, इज इक्वल टू 2/3 म्यू। म्यू हाउ मच? 0.25, 0.25 into w। w is what? Work done is what? Sorry, w is Newton ना, W is Newton. So work is equal, load is equal to, we know that pressure is equal to force by area, force by area। ओके, तो यहाँ पर फोर्स क्या है? W ही तो है। दिस इज अल्टीमेटली यूनिट इज न्यूटन ना, लोड। ये कितना लोड से हम लोग इसको W लोड से यहाँ प्रेस कर रहे हैं क्लच को। इस क्लच को, डिस्क क्लच को W लोड देकर हम लोग प्रेस कर रहे हैं। वही तो है। कितने एरिया में हो रहा है? इतने एरिया ही तो कांटेक्ट में आ रहा है ना, तो यही तो प्रेशर दे रहा है ना। अल्टीमेटली इसका एरिया क्या होगा? अल्टीमेटली ये क्या है हम लोगों का? कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर दिखेगा क्या? ये, दिस इज आवर व्हाट? दिस इज आउटर इज R1 एंड इनर इज R2। ये यही तो है। और यहाँ पूरा का पूरा क्या है? फ्रिक्शन लाइनिंग है ना। दिस इज आवर व्हाट? फ्रिक्शन लाइनिंग। फ्रिक्शन लाइनिंग। ओके, सो हमें एरिया क्या आ रहा है? वर्क डन इज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये एरिया तो कांटेक्ट में है ना फ्रिक्शन का। ओके, तो कैन आई राइट इन प्लेस ऑफ W, in place of W here, can I write here pressure into P into pi R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया W। अब ये वाला पूरा का पूरा टर्म एज इट इज वी विल राइट हियर। क्या है? R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब अपॉन R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, है ना। ये आ गया। अब इसको यहाँ पर करते हैं सॉल्व। ठीक, अब देखो, ये क्या है? ये वाला पूरा टर्म गायब होगा। क्या आ गया? 23.87 इंटू 10 to the power 3 इक्वल टू 2/3, 0.25 इंटू प्रेशर। प्रेशर हाउ मच गिवन? 1 मेगा पास्कल। तो न्यूटन पर mm स्क्वायर ना, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, मेगा पास्कल को ही 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर बोलते हैं, और mm में लेकर तो चल ही रहे हैं हम लोग। यहाँ पर 1 का 1 हो गया। क्या है? पाई, पाई को पाई रहने दो। यहाँ पर क्या है? R1 का क्यूब माइनस R2। R2 दे रखा है क्या? हमें तो R1 निकालना है। R2 हाउ मच गिवन? 25 mm में है, 25 का क्यूब। ओके, तो अल्टीमेटली R1 इज व्हाट कमिंग? डू कैलकुलेशन।
2/3 into 0.25 into pi, okay, this into 23.87 into 10 to the power 3, ठीक है, प्लस 25 टू द पावर 3, पावर इसका करेंगे 1/3, ये आ रहा है R1 क्यूब इक्वल टू 61213.34, 61213.34, ठीक है। तो R1 फाइनली कमिंग इज 39.408, ओके, ये mm में आएगा, है ना। तो फाइनली यही पूछा है, तो यही आ रहा है क्या, 39.41, है ना। कितना आया था, 39.4 है क्या ऑप्शन, यस है 39.4, ठीक है। So in this way you can solve the question based on the, okay, friction, okay, 2/3 mu into W into R. You can apply the question accordingly, ठीक है। So this is important, this formula is important, this one is important, okay. Now we will move to our next question. A short shoe drum, a short shoe drum, radius 260 mm, ठीक है, इसका रेडियस दे रखा 260 mm, ब्रेक इज shown in the figure, a force of 1 kilonewton is applied to the lever, मतलब 1 kilonewton यहाँ अप्लाई हो रहा है ना, this one, this load to the lever, the coefficient of friction is 0.4, ठीक है, रेडियस दे रखा है 260 mm का, ये फोर्स दे रखा है, दिस P फोर्स इज गिवन 1 किलो न्यूटन, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू गिवन इज 0.4, डायग्राम, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क अप्लाइड बाय द ब्रेक इज कितना न्यूटन मीटर, फिल इन द ब्लैंक्स, 1 डेसिमल प्लेस। तो कैसे होगा प्रॉब्लम सॉल्व, हाँ, यहाँ पर देखा जाए इस पॉइंट को O करते हैं, फिर ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, एक लाइन है ऐसे, ठीक है, ये लीवर है, अभी आर अप्लाइंग लोड हियर, हाउ मच, 1 किलो न्यूटन, ठीक, और ये है हम लोगों का यहाँ पर ब्रेक सिस्टम, ठीक है। थोड़ा इसको अच्छे जगह प्लेस किया जाए, इसका हाउ मच रेडियस गिवन, दिस इज 260 mm, है ना, ये, और डिस्टेंस दे रखा है, दिस डिस्टेंस 500 mm, 500 mm, ओके, एंड देन आफ्टर एक डॉट लाइन ऐसे देकर डायमेंशंस को बताया है, यहाँ से लेकर कहाँ तक का, सेंट्रल लाइन तक का, है ना, ये वाला डिस्टेंस कितना दे रखा है, 310 mm, है ना, दिस डिस्टेंस। अब मेरे को क्या बोल रहा है यहाँ पर, टॉर्क कितना अप्लाई हो रहा है इस
ड्रम ब्रेक पर रोटेट कैसा कर रहा है ये, कुछ इस तरीके का रोटेशन, इस तरीके का। तो कैसे सॉल्व होगा, देखा जाए। चलो क्यों ना हम लोग यहाँ पर मोमेंट अबाउट वो निकाला जाए, काम बन सकता है। देखो जैसे ये प्रेस कर रहे हैं 1 किलो न्यूटन, ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्सेस जनरेट होगा। कौन कौन सा फोर्स जनरेट होगा, ये देखो प्रेस कर रहे हैं तो एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है, इसके बोलते हैं हम लोग आर एन। आर एन नॉर्मल, क्या ये आर एन, ठीक है, ये क्या है आर एन, ठीक है, ऊपर की तरफ। ये यदि हम लोग इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट में क्या मिल रहा है, ये मतलब रेसिस्टेंस फोर्स, और क्या क्या हो सकता है, ये ऐसे हो रहा है, और जाहिर सी बात है ये नीचे की तरफ भी जाएगा एक, ठीक है, लेकिन हम लोग लेंगे कुछ एक ही, है ना। ये रोटेट हो रहा है तो जिसके कारण एक और फोर्स काम करेगा, कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स, एक ऐसे जाएगा एक ऐसे जाएगा, है ना। ये हो गया एफ फ्रिक्शन फोर्स, एफ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, कोई एक ही लेंगे हम लोग, है ना। देखो कौन कौन सा लेंगे हम लोग, यदि मेरे पास ये 1 किलो न्यूटन डाउन साइड, तो इस 1 किलो न्यूटन जो इनपुट दे रहे हैं हम लोग फोर्स, ठीक है, इसके कारण कौन सा दो फोर्स है जो बैलेंस कर रहा है 1 किलो न्यूटन को, ये ऊपर वाला ये बैलेंस कर रहा है, ठीक है, तो नीचे वाला को नहीं लेंगे, ठीक है, नीचे वाला को नहीं लेंगे। अब देखो, और ये वाला लें कि ये वाला लें, फ्रिक्शन फोर्स, ये जब प्रेशर में ऐसे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो रोटेशन ऐसे हो रहा है तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा था, ठीक है, तो रिजल्टेंट ये वाला होगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि टेक मोमेंट, अभी क्लियर होगा, मोमेंट अबाउट ओ, है ना, देखा फोर्स इंटू डिस्टेंस, दिस इज मोमेंट, सो 1 किलो न्यूटन 1000 न्यूटन इंटू डिस्टेंस, ठीक है, ये क्लॉकवाइज कैसे जा रहा है ये, दिस इज गोइंग क्लॉकवाइज, अभी क्लियर होगा, ये कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज अबाउट दिस, ठीक है। तो क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है 500 प्लस 500 1000, है ना, ये हो गया। अब इसके बराबर में ये जो दो फोर्स है, 1 किलो न्यूटन was our input, other two forces will be our output, okay, this is input, this is our resultant, means 1 किलो न्यूटन से जो निकल के आ रहा है फोर्स, दो फोर्स होगा, एक आर एन होगा और एक एफ एन होगा। आर एन क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है ब्रेक को, और एफ एन क्या कर रहा है, फ्रिक्शन दे रहा है, क्योंकि वो सरफेस है ना, फ्रिक्शन दे रहा है, रोकने में काम आ रहा है, ब्रेक है ना, ड्रम ब्रेक, ठीक है, दिस इज ब्रेक ना। तो इस 1000 टू 1000 मोमेंट को बैलेंस कौन कर रहा है, दो फोर्स, ये दोनों पॉजिटिव में होगा, दोनों पॉजिटिव में होगा, इज इक्वल टू, तभी तो बैलेंस कर रहा है ना 1000 टू 1000 मोमेंट को। क्या होगा, ये ऐसे घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे घुमा दें एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्या आ गया घुमाने पर, कौन सा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा क्या, 90 डिग्री, इसी को तो मोमेंट ऐसे बोलते हैं ना, 500 का से परपेंडिकुलर आर एन, आर एन इंटू 500, ठीक है, ये, और एक और कौन सा फोर्स होगा जो कि प्लस में होना चाहिए, ये भी, ये एंटी क्लॉकवाइज गया तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहिए, ये भी एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहिए, ठीक है, तभी तो एक क्लॉकवाइज बराबर दो एंटी क्लॉकवाइज के बराबर होगा, क्योंकि दो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है 1 किलो न्यूटन सिंगल फोर्स से, ओके।
आई होप आई एम क्लियर। सो एफ एन को बचा, एफ बचा इनटू कितना डिस्टेंस, यहां से यहां से एंटी क्लॉकवाइज, कहां से कहां तक का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा ना एफ एन के लिए, 90 डिग्री यही होगा ना, है ना। एफ एन इंटू परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, हाउ मच इट इज, कंप्लीट 310 इज गिवन, और ये रेडियस को गैप कर दो जो 260 दे रखा है। तो दिस इज नथिंग बस 310 माइनस 260, रिजल्टेंट इज 50 mm. So this is our perpendicular distance, how much, 50, this 50, 50, okay। now you can calculate here, देखो Rn और Fn का is there, we know relation, yes we know, okay। F is equal to mu into Rn, okay। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल ये है ना, और फ्रिक्शन फोर्स ये है। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर एन, ओके। एफ क्या है, फ्रिक्शन फोर्स ही तो है, ओके। अप्लाई हियर, ओके। तो 10 पावर 6 इज इक्वल टू आर एन को जगह हम लोग क्या करें, आर एन की जगह क्या करें, एफ अपॉन म्यू कर दें इंटू 500 प्लस एफ इंटू 50, ओके। सिंपल value calculate putting 10 power 6 is equal to f we don't know, mu is it given, yes it is given 0.4 into 500 plus f we don't know into 50, so calculate f here, फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा है, 500 डिवाइडेड बाय 0.4 प्लस 50, ठीक है। और ये आ रहा है 10 पावर 6, ये आ रहा है हमें, ये आ रहा है हमें 500 डिवाइडेड बाई 0.4, ठीक है, प्लस 50, इनवर्स कर दो इंटू 10 पावर 6 कर दो, दिस इज कमिंग 769.23 न्यूटन, ओके। दिस इज आवर फ्रिक्शन फोर्स। अब हमें क्या पूछा, क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अप्लाई टू द ब्रेक, टॉर्क इसमें कितना लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इनटू आर रेडियस विल गिव द टॉर्क, ओके सिंपल। So resultant torque will be friction force into radius. The friction force we calculated 769.23 into radius. How much radius given? 260 na? 260 radius. 260. So this is in Newton. This is in Newton and this is in mm. This is in mm. Okay. So ये हमें आया mm में, है ना, ये में। तो करते हैं कैलकुलेट, इंटू 260, ये आ रहा है 2200 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन mm में, ठीक है। और पूछा किस में हमें, न्यूटन मीटर में पूछा है, कर दो यहाँ पर 200 न्यूटन मीटर, दिस इज आवर फाइनल आंसर 200, so 200 is our correct answer, ठीक है। 200 is our correct answer. So in this way you can solve the problems based on the brake shoe, okay, by taking the moment, okay, and get the various resolved forces. Now next question, gate 3 2012 में पूछा है, a force of
400 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्रेक, अप्लाइड किया जा रहा है 400 न्यूटन टू द ब्रेक ड्रम ऑफ 0.5 मीटर डायमीटर, सो डायमीटर गिवन इज 0.5 मीटर, और एक फोर्स दे रखा है, ये वाला फोर्स जो कि पुल किया जा रहा है, कोई आदमी यहाँ से पुल कर रहा है रस्सी को इस तरीके से, ठीक है, ड्रम को रोकने के लिए। In a band brake system as shown in the figure, where the wrapping angle is 180 degree, means this angle wrapping angle, ठीक है, कितना दे रखा है wrapping angle, जिससे बेल्ट क्या हो रहा है, बेल्ट क्या हो रहा है कि हमें wrap angle 180 डिग्री पर हमें पूरी तरीके से wrap किया हुआ है, ठीक है, लपेटा हुआ है रस्सी या ब्रेक जो भी बेल्ट है। If the coefficient of friction between the drum and the band is 0.25, mu is 0.25, ओके, ड्रम और ब्रेक के बीच में जो फ्रिक्शन है दोनों के बीच में वो 0.25 का है। द ब्रेकिंग टॉर्क अप्लाइड इन न्यूटन मीटर इज, टॉर्क पूछ रहा है क्या, टॉर्क पूछ रहा है क्या होगा। देखो ध्यान से देखो, ये फोर्स ऑफ 400 न्यूटन इज अप्लाइड, मतलब ये इनपुट फोर्स है ना जो, तो जाहिर सी बात है T1 होगा, ये T1 हमेशा ग्रेटर देन T2 होता है, ठीक है, जब ओपन बेल्ट सिस्टम और क्रॉस बेल्ट सिस्टम में हम लोग देखें, ठीक है, इस तरीके से, है ना, तो ये T1 हो गया, यदि ऐसे रोटेशन हो रहा है, ऐसे रोटेशन हो रहा है, और ये T2 हो गया, है ना, ये शाफ्ट हो गया, ये शाफ्ट, तो T1 इज हमेशा ग्रेटर देन T2, क्यों भाई, क्योंकि ये टेंशन टाइट होता है, टाइट साइड, टाइट साइड, और ये स्लैक साइड मतलब ढीला साइड, है ना, तो यहां से पुल कर रहा है, क्या कर रहा है, अप्लाइड, तो ये T1 हमेशा मतलब अप्लाई जो कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हो तो मैक्सिमम होगा ना, फिर थोड़ा लॉस होकर ये T2 आ गया, ओके, तो T1 वी नो, T1 इज नो 400 न्यूटन, T2 हमें निकालना पड़ेगा, तो क्या जानते हैं हम लोग, बेल्ट के लिए T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू ई टू पावर म्यू थीटा वी नो ना, म्यू थीटा वी नो so T1 is how much, 400, T2 we don't know, is equal to e to the power mu, mu how much given, 0.25 into theta, theta how much wrap angle, 180 degree, 180 degree, always remember this theta is in not in degree, साइन का डिग्री में होता है, जैसे 180 डिग्री कर देंगे तो ये चलता है कॉस 180 डिग्री चलता है, tan अंदर में जो भी वैल्यू होगा 80 डिग्री चलता है, ओके, लेकिन यदि 180 डिग्री अकेला कहीं भी देखोगे एंगल दे रखा है तो वो हमेशा का हमेशा पाई बाई 180 रेडियन में होगा, दिस रेडियन, एंड साइन के अंदर में कॉस के अंदर में ट्रिग्नोमेट्री का कोई वैल्यू के अंदर में जो वैल्यू होगा दैट इज इन डिग्री, आइसोलेटेड होगा वो होगा रेडियन में, दिस इज आइसोलेटेड सो इन रेडियन, 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, 180 डिग्री, पाई बाई 180 डिग्री होता है क्या, होगा ना, ये डिग्री से डिग्री यूनिट गया, ठीक है, तो रेडियन आ जाएगा, ठीक है, कितना आया 180 डिग्री इज दिस वन, दिस इज 180 डिग्री, पाई बाई 180 डिग्री रेडियन कन्वर्ट करने के लिए, okay, so how much we are getting, 0.25 into pi e to the power answer into 400, so you are getting 182.3
न्यूटन. Okay, so this is our slack side. T1 is tight side, this is tight side, this is slack. ठीक है. टाइट क्यों था? क्योंकि यहाँ अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, अप्लाई वाला हमेशा टाइट होगा. और ठीक है, दूसरे साइड वाला अप्लाई नहीं हो रहा है तो मतलब कुछ स्लैक होगा, लॉस हो रहा है फोर्सेस. ठीक है. नाउ हमें क्या पूछ रहा है? टॉर्क बोला है. टॉर्क वी नो दैट ना, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स T1 माइनस T2 इंटू रेडियस. ठीक है, यही तो होता है. यूनिट क्या होगा? टेंशन का यूनिट न्यूटन, रेडियस मीटर में आ गया, न्यूटन मीटर में. यही तो होता है टॉर्क का. तो T1 इज हाउ मच गिवन? 400. T2 how much? We calculated 182.37 into radius. Radius is how much? इसके लिए इसका रेडियस कितना है? 0.5 डिवाइडेड बाई 2. 0.5 डिवाइडेड बाई 2 ये डायमीटर है. कितना आ रहा है? 400 माइनस 182.37 into 0.5 divided by 2. Okay, so this is coming 54.4075 न्यूटन मीटर. ओके, आंसर दे रखा है. हाँ, ये वाला है. तो बी विल बी आवर आंसर. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग. ये इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का क्वेश्चन है, कैरिंग 1 मार्क्स. क्या है? द टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ फ्रिक्शन क्लचेस कैन बी इंक्रीज्ड बाय. टॉर्क किसी क्लच का बढ़ाना है, तो टॉर्क किसी क्लच का बढ़ाना है तो क्या करते हैं? दो थ्योरी हम लोग पढ़े हैं, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी. ठीक है. ये कब यूज करते हैं? जब क्लच हमेशा नया आया है. ठीक है, इंडस्ट्री से जस्ट बनाया पहली बार, उसको हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं क्लच को. ठीक है, तो वहां कोई वियर नहीं हुआ है. ओके, सो इन दैट केस एवरीवेयर यूनिफॉर्म लोड विल बी एक्टिंग. तो टॉर्क इज इक्वल टू 2/3 म्यू इंटू डब्ल्यू, R R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब अपॉन R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर. ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके है ना, यहाँ देख चुके. कहाँ देख चुके? यहाँ पर. ठीक है, ये यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए था, ये यूनिफॉर्म वियर के लिए. ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला डायरेक्ट यूजिंग इस क्वेश्चन. यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए. नाउ फॉर यूनिफॉर्म वियर. ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे. ठीक है, क्यों नहीं करेंगे देखते हैं. यूनिफॉर्म वियर थ्योरी. टॉर्क विल बी गिवन बाय 1/2 म्यू इंटू डब्ल्यू. ओके, क्या होगा? म्यू इंटू न्यूटन मीटर. ठीक है, क्या होगा? R1 प्लस R2. यूनिट आएगा क्या? इसका यूनिट न्यूटन है, इसका यूनिट मीटर. आ गया क्या दोनों साइड में? न्यूटन मीटर है ना. फॉर्मूला इज सेम ना, 1/2 mu into W R1 plus R2. The same thing I've written here. So you have to keep this in mind. Okay, this formula. Okay. यहाँ पर क्या बोल रहा है? The torque transmitted capacity of friction clutches can be increased by. ये T कब बढ़ेगा? Use of friction material with lower coefficient of friction. या म्यू का वैल्यू घटा देने से होगा क्या? नहीं, क्योंकि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मी हुआ. ठीक है, तो घटाएंगे तो ये भी तो घटना चाहिए, तो ये वाला गलत हो गया है ना.
हमेशा टॉर्क हमें बढ़ाना है, टॉर्क हमें बढ़ाना है, तो म्यू को बढ़ाना पड़ेगा ना। यहाँ बड़ा हुआ हाइयर होता तो ये करेक्ट हो जाता ये, लेकिन ये लोअर है तो गलत बोला। डिक्रीजिंग द मीन रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन डिस्क, इसका देखो ये वाला T इज इक्वल टू म्यू इंटू डब्ल्यू, R1 प्लस R2 लिख सकते हैं क्या, डिवाइडेड बाय 2। टू को इधर ले, म्यू डब्ल्यू और इसको R लिखते हैं। R क्या है, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2, ये होता है मीन रेडियस। इसीलिए मैं बोल रहा था ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यूनिफॉर्म वियर मीन रेडियस। तो R को बढ़ाएंगे तो T भी बढ़ रहा है क्या, डिक्रीजिंग द मीन रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन, नहीं गलत। इसको घटाएंगे तो टी भी घटेगा, जबकि टॉर्क को बढ़ाना है, टॉर्क को बढ़ाने के लिए मीन रेडियस को बढ़ाना होगा। तो टॉर्क को बढ़ाए तो इंक्रीजिंग द मीन रेडियस हो गया क्या, तो सी इज आवर करेक्ट आंसर। हम लोग स्टॉप हो जाएंगे डी पर जाने, सोचेंगे। ओके, तो सी इज आवर आंसर। नाउ one last question we will solve here. If the velocity ratio of an open belt drive is 8, velocity ratio is given 8, okay, ओपन बेल्ट ड्राइव का, यानी स्पीड ऑफ ड्राइविंग पुली इज, स्पीड दे रखा है एक मेरे पास, चलो ठीक है ओपन बेल्ट बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये 1 हो गया, दिस इज अवर 2, ओके। यहां से ऐसे ये इसका शाफ्ट हो गया। वेलोसिटी रेशियो दे रखा है, if the speed of the driving pulley is 800 rpm, means n1 is given 800 rpm, then considering an elastic creep of 2%, elastic creep, elastic creep 2%, ठीक है। द स्पीड ऑफ द ड्रिवन पुली इज, यानी कि n2 का वैल्यू पूछा है, n2 का वैल्यू पूछा है, कैसे होगा। यहाँ पर देखो n1 अपॉन n2 दे रखा है क्या ये, ठीक है। n1 अपॉन n2, हम लोग n2 अपॉन n1 भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आंसर कोई भी मैच नहीं करेगा, यू कैन चेक। ओके, पहले हम लोग सोल्व करते हैं n1 अपॉन n2। दिस इज वेलोसिटी रेशियो इज n1 अपॉन n2। तो यहाँ से क्या आ गया, इन दोनों से क्या आया मेरे पास, n1 upon n2 given is 8, okay, so we are having n1 is 800 divided by n, so this is 8, ठीक है। तो n2 क्या आया, 100 आया, है ना, 100 rpm, ओके। अब देखो यदि ये बेल्ट है, इसका वेलोसिटी v है, ओके, वेलोसिटी v है, तो वेलोसिटी v है, तो इसका बताओ, ये हमेशा इनपुट है ना, मोटर चला रहा है ना, इसे ड्राइवर है, दिस इज आवर व्हाट, ड्राइवर, ड्राइवर, दिस इज आवर व्हाट, ड्रीवन, ड्राइवर एंड ड्रीवन। क्वेश्चन बोल रहा है ड्राइविंग पुल्ली का 800 है, तो n1 को यहाँ पर 800 कर रखे, ठीक है, इसीलिए ड्राइविंग बोल रहा है, मतलब ड्राइवर, ड्राइवर है। थोड़ा सा दिमाग लगाने पर ये पता चलेगा n1, यानी कि ये जो पुल्ली है हमेशा स्पीड पे ऐसा घूमेगा, क्या स्पीड होगा, स्पीड क्या होगा इसका, पाई डी एन अपॉन एन, पाई, मेरे को कंपैरिजन करना है, वेलोसिटी v बेल्ट का ज्यादा होगा कि पुल्ली का ज्यादा होगा, दो 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 यहाँ पर कंपैरिजन करें, इसका वेलोसिटी क्या है, पाई d1 n1 अपॉन 60, ड्राइवर का है, ये हमेशा मोटर से मिल रहा है इसे पावर, ठीक है, मोटर क्या कर रहा है, डायरेक्ट पुल्ली को चला रहा है, फिर ये पुल्ली बेल्ट को चला रहा है, तो बेल्ट में कम स्पीड पहुंचेगा, क्यों पहुंचेगा,
क्योंकि स्लीपिंग हो रहा है बेल्ट और पुल्ली का। इसी को क्रीपिंग बोलते हैं। अनइवन एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ द बेल्ट काउजेज रिलेटिव मोशन द पुल्ली एंड बेल्ट। ठीक है, स्लिप हो रहा है तो सबसे ज्यादा हमें स्पीड यहाँ मिलेगा, और लॉस होने के बाद S1 स्लिप परसेंटेज है तो V को मिलेगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, पाई, हमेशा यदि स्लिप S1 हो रहा है, S1 हो रहा है तो V इज इक्वल टू पाई D1 N1 अपॉन 60। ठीक है, माइनस करेंगे ना इसको, S1% स्लिप हो रहा है तो, इंटू पाई D1 N1 अपॉन 60। ठीक है, ये होता है ना। अब सेम यहाँ पर 2 में काम करें, 2 में बिटवीन ड्राइवर एंड बेल्ट। ठीक है, अब करते हैं बिटवीन ड्रिवन, यानी कि 2 वाला, और बेल्ट में, एंड बेल्ट में। अब मेरे को बात बताओ, ये भी बेल्ट क्या कर रहा है, इस ड्रिवन को चला रहा है, तो V का हमेशा स्पीड ज्यादा होगा ना, कंपेयर टू यहाँ पर पाई पाई D2 N2 अपॉन 60, क्योंकि ये अल्टीमेटली आउटपुट मिल रहा है ना इसमें, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर भी स्लिप हो रहा है, तब जाके पाई D2 N2 मिल रहा है। तो V को घटाना पड़ेगा, कितना घटाएं घटाएं, S2/100 इंटू V। ठीक है, तब जाके पाई D2 N2/60 मिलेगा, है ना। तो ड्रा तो फिर से ड्राइवर है, ड्राइवर का स्पीड हमेशा ज़्यादा होगा, और स्लिप होने के बाद V देगा, इसीलिए मैं यहाँ पर कर दिया। V कब मिलेगा, जब ये वाला बड़ा को थोड़ा सा और माइनस कर दो S1/100 से, जो स्लीपिंग हो रहा है बेल्ट और ड्राइवर के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ड्रीवन में हमेशा वेलोसिटी जो पहुंच रहा है सबसे कम मिल रहा है। ठीक है, सबसे कम मिल रहा है, और इसको बराबर करने के लिए V हमेशा ज्यादा है ना, V हमेशा ज्यादा है कंपेयर टू ड्रीवन, तो V को माइनस कर दो यहाँ पर। यहाँ से हम लोग को स्लीपिंग ऑफ द बेल्ट, यहाँ का V का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हम लोगों का N2/N1। लेकिन मेरे को इतना नहीं जाना है, यहाँ पर देखो 2% क्या हो रहा है, इलास्टिक क्रिप हो रहा है। ठीक है, तो 100 आया ना, तो कंसेप्ट क्या बोलता है, इलास्टिक क्रिप इज द अनइवन एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बेल्ट काउजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन द बेल्ट एंड पुल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर 100 माइनस 2/100 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, ये रिजल्टेंट हम लोगों का क्या, इंटू डैश मिले। ठीक है, यहाँ स्लिप होने के बाद 2% स्लिप हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 2% स्लिप हो रहा है। ठीक है, तो कितना आ गया, 100 ठीक है, माइनस 298। ठीक है, RPM, so our 98 will be correct. ठीक है, so in this way you can solve the problems, okay, based on the sleeping conditions. Okay, that's all from this side. Okay, some more questions I will be solving with by taking questions from conventional questions from engineering service exam. So stay connected with this lectures. So thank you all.